Question number 16. Find a GP for which sum of first two terms is -4. Sum of first two terms, that is S2. S2 means sum of first two terms is -4. First two terms का sum हमें -4 given है. And fifth term is 4 time of third term. First information हमें given है S2 is -4. And second information, fifth term is 4 time of third term. Fifth term, that is A5. A5 is equal to 4 time of third term, right? So A5 is equal to 4 time of A3. What is A5? A formula for A5 is AR to the power 4. nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1. सो A5 के लिए फॉर्मूला होगा a इंटू आर टू द पावर 4. दिस इज इक्वल टू 4 इंटू A3. A3 के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है a इंटू आर स्क्वेयर, राइट? a को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, आर स्क्वेयर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. लेफ्ट साइड में हमारे पास आर स्क्वेयर बचेगा, दैट इज 4. एम्प्लाइज आर इज इक्वल टू प्लस माइनस आर हमारा हो गया प्लस माइनस 2, राइट? आर प्लस माइनस 2 है. नाउ हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं. S2 इज इक्वल टू -4. ऑल्सो S2 is equal to -4. If S2 is -4, what is S2? A into R2 minus 1 upon R minus 1. This is -4. Now what is R? R is either +2 or -2, right? So एक बार if we take, if R is equal to -2, right? Then ये हमारे पास होगा A. What is A? A हम नहीं जानते. A into R square will be 4 minus 1 upon -2 minus 1. -2 minus 1. That is -4. This implies A into 3 upon -3 is equal to -4. ये हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. A upon -1 is equal to -4. implies A is equal to 4, right? यहाँ से हमें A मिल गया. R हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. अकॉर्डिंग टू दैट GP हमें फाइंड करनी है. ऑल राइट, implies GP is A is 4, so first term will be 4. GP will be A. Second term will be AR. Third term is AR square and so on. Implies what is A? A is 4. Second term is A into R. R हमने यहाँ पर क्या चूज किया है? -2. So 4 into -2, that will be 8. Second term of GP will be, sorry, it will be -8. 4 into 2, that is -8. Now third term of GP will be A into R square. R square हमारा क्या होगा? R square will be +4 into this, that will be 16, right? -4, 8, 16, right? Next will be 60 minus of 64. Next term will be -64, right? इस टाइप से हमारी GP होगी. Now if we take, यहाँ पर हमने R को क्या चूज किया है? -2. Now we will take if R is equal to 2. R को अगर हम 2 लेते हैं, in that case similar procedure हमें फिर से रिपीट करना होगा. S2 हमें क्या गिवन था? -4. तो इस रिलेशन में हम R को क्या पुट करेंगे? 2. So it will be A into R square, that is 2 square, -1 upon 2 minus 1, that is -4. Implies A into 2 square is 4 minus 1 upon this is 1, that is equal to -4. Simplifying this, A will be A into 3 is equal to -4. implies A is equal to -4 by 3. यहाँ से हमें A मिला है
minus 4 by 3. So now we will find GP. Then GP will be AR square and so on. Fine. Implies what is it? A is 4. R is 2, A is this. So this into this minus 8 by 3. 1 second. A is minus 4 by 3. Right. Second, it will be minus 8 by 3. Next, R square will be 4. 4 into this minus 16 by 3 and so on. So GP will be minus 4 by 3. First term is minus 4. So it will be minus 4 by 3, minus 8 by 3, minus 16 by 3 and so on. So ये हमारी GP होगी. Next is 17, question number 17. If 4th, 10th and 16th term of GP are x, y, z. 4th term, 16th term, 10th term and 16th term are x, y, z. A4 is x, A10 is y, A16 is z, right? Then prove that x, y, z are in GP. हमें प्रूव करना है कि x, y, z GP में है. A4 is x, A10 is y, A16 is z, right? A4 is x, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. A4 के लिए हम लिख सकते हैं AR cube, implies AR cube is equal to x. This is relation 1. A10 is y. What is A10? AR to the power 9 is equal to y. This is relation second. A16 is z, that is AR to the power 15. This is equal to z. This is 3. ये तीन रिलेशन है, इनकी हेल्प से हमें प्रूव करना है. प्रूव दैट x, y, z are in GP. टू प्रूव क्या है हमारे पास? टू प्रूव x, y, z are in GP. x, y, z GP में है. एक्स वाई जेड को जीपी में प्रूव करने के लिए हमने पहले भी किया था. इफ 3 numbers are in GP, then square of middle that is y square is equal to xz. If 3 numbers are in GP, तो क्या होता है? Square of middle is equal to product of first and last. So x y z को GP में प्रूव करने के लिए it is sufficient to prove that y square is equal to xz, right? Okay. Now by equation 3 and 1 and 3. By equation 1 and 3, x into z मल्टीप्लाई अगर हम इन दोनों को करते हैं, then it is AR होल क्यूब इंटू AR टू द पावर 15. हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. So it will be x into z. राइट साइड मल्टीप्लाई होके क्या होगी? x into z. दोनों की लेफ्ट साइड को हमने मल्टीप्लाई किया, राइट साइड भी मल्टीप्लाई होगी, राइट? a into a is a square. This is, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, a into a will be a square. This is r cube and this is r 15. These सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. r raised to power 3 plus 15 that is 18 is equal to x into z. This implies, now इसे हम लिख सकते हैं AR to the power 9 whole square. This is x into z. x into z, AR to the power 9 whole square is equal to xz. xz हमारा क्या है? y square. Sorry,
AR9. What is AR9? AR9 is y. So it will be y. Y square is equal to xz. Y square को हम क्या लिख सकते हैं? AR9 को हमने यहाँ पर y डाल दिया. So it will be y square that is equal to xz. Next is question number 18. Question number 18. Find sum of n terms of the sequence. Sum of n terms of the sequence हमें find करना है. That is Sn हमें find करना है. And sequence हमें given है 8, 88, 888 and so on. ये है. Right? इस सीक्वेंस के n टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है. सो हम इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं? ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस एंड सो ऑन. Sn is this. This is equal to, this is a special sequence. This is neither AP nor GP. सो इसको हम जीपी में कन्वर्ट करेंगे. सो इस टाइप की सीक्वेंस को जीपी में कन्वर्ट करने का मेथड क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस नंबर को देखें 8. सबसे पहले आपको 8 यहाँ से कॉमन लेना होगा. सो इट विल बी 1 प्लस 8 यहाँ से कॉमन लेने के बाद इट विल बी 11 प्लस दिस विल बी 111 एंड सो ऑन. राइट? दिस इज इक्वल टू 8. अब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. सो ब्रैकेट के बाहर 9 से डिवाइड करेंगे एंड ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? 9 से मल्टीप्लाई. 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन. राइट? दिस इज इक्वल टू 8/9. अब हम इसको एक जीपी की टर्म में जीपी में कन्वर्ट करेंगे. 9 को हम लिखेंगे 10 माइनस 1 प्लस 99 इज 100 माइनस 1. 999 is 1000 minus 1 up to कितनी टर्म्स का सम है? n टर्म्स. यहाँ पर भी हमें लिखना चाहिए up to n टर्म्स. This is also up to n terms. Fine. This is equal to 8/9, 10, 100, 1000. इन सारी टर्म्स को हम एक अलग ब्रैकेट में कलेक्ट करेंगे. दैट इज 10 प्लस 100 प्लस 1000 एंड सो ऑन. कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स होंगी ये. सो इट विल बी n टर्म्स. राइट? प्लस हर ब्रैकेट में हमारे पास एक -1 है. -1 -1 -1 और ऐसे यहाँ पर n टर्म्स तक हमारे पास n ब्रैकेट्स होंगे. सो हर ब्रैकेट में एक -1 है. सो माइनस को हम अलग से इकट्ठा कर सकते हैं. माइनस को कॉमन लिया सो इट विल बी 1. दिस इज ऑल्सो 1. 1 प्लस 1 कितने टाइम? n टाइम्स. n टाइम्स 1 हमारे पास प्लस में होगा. राइट? This is equal to 8/9 into, this is 10, this is 100, this is 1000. This is an AP, right? 10, 10 square, 10 cube and so on. This is an AP in which first term is 10 and common ratio A2 by A1 अगर हम करते हैं then it will be 10. This by this 10 आएगा. So common ratio भी क्या हुआ? 10. So इस GP में n terms हैं जिसकी first term 10 है, common ratio भी 10 है. सो इस जीपी की n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होगा? a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. नाउ व्हाट इज a? a इज 10 इंटू r टू द पावर n. r इज 10, राइट? सो वी विल राइट 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1. माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स. सो इट विल बी n. This is equal to 8/9, 10 into
This is 10 to the power n plus 1. 10 to the power n plus 1 माइनस 10 को अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 10 अपॉन 10 minus 1 9 minus n, right? This is equal to 8 by 9. 10 to the power n plus 1 minus 10. अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारा 9 होगा, 9 एलसीएम n के साथ मल्टीप्लाई होगा 9n, right? So we can write it as 8 upon 81 into 10 to the power n plus 1 minus 9n minus 10, right? इस टाइप से हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं टर्म्स को. सो एस एन सम ऑफ एन टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस हमें फाइंड करना था एंड दिस विल बी दिस. Next question. Next question is question number 19. The sum of find sum and product of the corresponding term of the sequence. One sequence is 2, 4, 8, 16, 32, right? And second sequence is 128, 32, 8, 2 and half, right? इस सीक्वेंस की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है, दैट इज फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया है, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, राइट? सो अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं सो इट विल बी 256. फर्स्ट टर्म विल बी 256, ठीक है. सेकंड टर्म विल बी 128, 4 into 32. नेक्स्ट टर्म विल बी 64, ठीक है. थर्ड second last term is 32 and this is 16. 256, 128, 64, 32 and 16, right? A is 256. A is 256 and इस सीक्वेंस को अगर हम ध्यान से देखते हैं A2 by A1 करेंगे it will be half, this by this करेंगे then again it is half, this by this is half, this by this is also half. So it is a GP with common ratio half. गिवन जो दो सीक्वेंस है हमें फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों सीक्वेंस जीपी हैं और जीपी की दो टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए जो नई सीक्वेंस आएगी वो भी एक जीपी होगी, राइट? नई जीपी में जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ सीक्वेंस. दोनों सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो आएगा वो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी. एंड कॉमन रेशियो ऑफ दिस न्यू सीक्वेंस विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉमन रेशियो ऑफ बोथ जीपी. जैसे फर्स्ट का कॉमन रेशियो हमारा 2 है और सेकंड का कॉमन रेशियो क्या है, दिस बाय दिस 1/4 है. सो नई सीक्वेंस का जो कॉमन रेशियो होगा r, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ r1 r2. दिस इज हाफ. सो आप चेक कर सकते हैं नई सीक्वेंस का कॉमन रेशियो क्या है, हाफ, राइट? नाउ हम आगे चलते हैं. नाउ वी हैव ए जीपी इन विच फर्स्ट टर्म इज 256 एंड कॉमन रेशियो इज हाफ. सो हमें इस सीक्वेंस में n हमारा क्या है, 5 टर्म्स है, n हमारा 5 हो गया. इस सीक्वेंस की 5 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है. सो S5 इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर 4 minus 1, सॉरी इट विल बी 5 अपॉन 5 minus 1 which is equal to what is a? A is 256.
into r. r is, इसमें हम सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि r हमारा क्या है, लेस देन 1. r is less than 1, so a into 1 minus r to the power 4 upon 1 minus r. Now what is a? A is 256 into 1 minus, what is r? 1 by 2 to the power 4 upon 1 minus r. r is half, 256, 1 minus 1 by 2 to the power 4, 1 by, this is 16, upon 1 minus half, that is also half. This is 256, 16 minus 1, this is 15 by 16 upon half, right? So it is 256 into 15 upon 16, and this half will be reciprocal, so it will be 2 by 1, right? 2 8, what is this? This is 2 to the power 7, 7 8, 2 to the power 8, and this is 2 to the power 3. 256 को हम 2 to the power 8 लिख सकते हैं, into 15 upon 8 is 2 to the power cube. So power कम हो जाएंगी, it will be 2 to the power 8 minus 3, that is 5 into 15, and 2 to the power 5 is 32 into 15. So this will be, क्या आप कट कर सकते हैं, 8 1 जा 8, 32, so it is 32 into 15, 480, right? It will be 480. So इस सीक्वेंस के टर्म्स का जो सम होगा that will be 480. ये यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड. एन एक्चुअली हमारा 5 था जो हमने 4 डाल दिया, सो एक बार इसको ठीक करते हैं. सम ऑफ 5 टर्म्स निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर r क्या होगा, 5, राइट? दिस इज इक्वल टू S5 is a into 1 minus R5. R5 is 1 by 2 to the power 5 upon 1 minus 1 by 2. A हमारा क्या है, 256, right? This is equal to 256 into 1 minus 1 by 32 upon 1 minus half, that is half. ठीक है, this is 256. अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ पर 32 इज एलसीएम, सो इट विल बी 32 minus 1 अपॉन हाफ, रेसिप्रोकल हो गया, क्या हो जाएगा, 2 upon 1, राइट? सो इट विल बी, दिस इज इक्वल टू 256, 2 को हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, इट विल बी 16. न्यूमरेटर हमारा होगा 32 minus 1, दैट इज 31 upon 16, राइट? 4 से कट कर सकते हैं, 4 4 जा 4 6, 4 4 जा 4 16, that is 16 into 31, right? 16 into 31, 31 16, that is 496, so it will be 496. Next is question number 20. Next is question number 20. In question number 20, show that product of the corresponding terms of the sequence. One sequence is A,
AR square up to so on AR to the power n minus 1. And second sequence is AR square AR to the power n minus 1. राइट, दो सीक्वेंस हमें गिवन है, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना है. सो न्यू सीक्वेंस विल बी A into A, that is AA. First term, second term will be multiplied with second term. So A into A, and R into R. This will be second term. Third term will be A into A, R square into R square, and so on. What will be nth term? A into A and R to the power n minus 1, कैपिटल R to the power n minus 1. इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप, अदरवाइज इसको ऐसे लिख सकते हैं AA RR, नेक्स्ट इज AA RR होल स्क्वायर अप टू सॉन AA RR टू द पावर n माइनस 1. राइट, इस टाइप से हमारे पास सीक्वेंस है. दिस इम्प्लाइज हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर? कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो विल बी A2 by A1. अगर हम चेक करते हैं, दैट इज AARR अपॉन AA. सो कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या आएगा? RR. नेक्स्ट इज A3 अपॉन A2 AARR होल स्क्वायर अपॉन RR. राइट, सो कॉमन रेशियो विल बी RR एंड सो ऑन. ठीक है, an माइनस 1. सो इस टाइप से हम देख सकते हैं कॉमन रेशियो इज RR. वैसे भी कॉमन रेशियो जब दो जीपी को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू सीक्वेंस का जो कॉमन रेशियो होता है वो दोनों के कॉमन रेशियो का प्रोडक्ट होता है. सो फर्स्ट जीपी में कॉमन रेशियो क्या है? फर्स्ट जीपी में कॉमन रेशियो R है और सेकंड जीपी में कॉमन रेशियो हमारे पास कैपिटल R है. सो न्यू सीक्वेंस का जो कॉमन रेशियो होगा दैट विल बी RR. आप यहाँ से भी देख सकते हैं कॉमन रेशियो क्या है? R into R.